Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी है और ब्रो पाकिस्तान गॉट स्पैंकिंग. या स्पैंकिंग छोटा लफ्ज है मेरे ख्याल से. इनफैक्ट मैंने अपने नोट्स पे लिखा हुआ था कि न्यूजीलैंड स्मैश्ड पाकिस्तान बाय 78 मजा नहीं रन्स. है. बट देन आई सॉ योर थंबनेल दैट यू हैड क्रिएटेड व्हिच इज अ वेरी नाइस लुकिंग थंबनेल और उसमें तुमने वर्ड यूज किया था डिमोलिश. डिमोलिश ही किया. तो ये डेमोलिशन ही थी. न्यूजीलैंड डिड इन फैक्ट डिमोलिश पाकिस्तान बाय 78 रन्स इन द फर्स्ट ओडीआई ऑफ दिस ट्राई सीरीज. नेट रन रेट पे भी मार खा गए शुरू में, हैवी मार. वो तो लितर मारे हैं ना. अबरार के कैमियो ने थोड़ी ब्लो सॉफ्ट कर दी है, वरना और बुरी नेट रन रेट पे डिफीट होनी थी. एंड नाउ पाकिस्तान रियली वुड बी होपिंग कि न्यूजीलैंड समहाउ डिफीट साउथ अफ्रीका टुमारो. Otherwise, it could be curtains already. And whilst I don't particularly care कि पाकिस्तान जीते ये ट्राई सीरीज या नहीं, I want Pakistan to play 3 games. और वो 2 गेम खेलने के बाद चैंपियंस ट्रॉफी में चले जाएंगे unless they make the final. So it's not good news at all. Not and at all. The main orchestrator of this demolition was Golden Boy Glenn Phillips. He absolutely obliterated Pakistan. His time is now, baby. और कितनी हम लोगों ने बातें सुनी है इसमें. मैंने तो गुड एरिया से भी कई दफा सुनी है, यहाँ पे भी कई दफा लोग बोल चुके हैं. नजर आ जाता है ये प्लेयर है. नहीं, and the amount of people who have called me out for overhyping Glenn Phillips over the last couple of years is a lot. Well, those people now stand corrected because he not only smashed an unbeaten 106 of 74 deliveries, he also took a splendid catch कमाल. to dismiss Babar Azam. वही short mid wicket पे. Yes. ठीक है. And then he also got the massive wicket of Fakhar Zaman, pinned him in front of the stumps. LBW. प्लम. और आप इससे बेहतर अभी क्या ही गेम हो सकती है. मैं तो कह रहा था कि यार इसको 1-2 ओवर कीपिंग भी करा लो. कर सकता है वो कीपिंग. ही इज एज कंप्लीट अ क्रिकेटर एज यू कुड आस्क फॉर. वो पूरी कंप्लीट गेम ही हो जाती है अगर उसको कीपिंग भी कर ली होती. बट मैन, look at the acceleration, Sadi. Half century उसने की है 55 deliveries. Yes, so 55 ball 50, and then he got to his 172 deliveries. So he scored his next 50 in 17 deliveries, which is immense, and that's exactly what he's capable of. He absolutely destroyed Shaheen and Naseem at the death, man. यार भाई जो उसने एक तो शाहीन को तो खा ही गया ना. शाहीन के तो उसने पड़खच्चे उड़ाए हैं. पड़खच्चर्स. उसके अलावा जो उसने शॉटें मारी है ना. पड़खच्चियां. अच्छा बस एक उसने नसीम को छक्का मारा है off his legs, which was insane. I mean, Glenn Phillips is that kind of player who can hit you. उसके बाद जो पैडल मारी है उसने शाहीन ने को रिवर्स पैडल. Wasn't just the paddles, man. It was well, you can't look past the big hits both down the ground and over mid wicket. वो तो उसका area है. When he heaves over mid wicket, they stay hit, right? Those balls. But yeah, even down the ground, he was nailing some beautiful, crisply timed shots, man. बहुत crisp timing थी Glenn Phillips की. Off side भी कुछ निकाली है इसने बहुत खूबसूरत timing के साथ. And then there were those cheeky reverse paddles as well. कसम से मैं मैच देखता था अपने भाई के साथ और मैं कह रहा था कि यार ये शाहीन वाइड यॉर्कर्स ट्राई कर रहा है. शॉर्ट थर्ड मैन लिया हुआ है. कतरी पे चौका नहीं कर सकता. कतरी क्या, उसने तो पैडल स्कूप ही मार दी. स्कूपेजेस. मज्जू तो कराया ना फिर. कमाल इनिंग्स. मजेजेस. मतलब it was so enjoyable. First match in the renovated Gaddafi Stadium, which was looking nice. It was looking really nice. Packed crowd, and he absolutely entertained them. And क्या ही उसने क्रिकेट खेली है. Such impeccable shot making, such brute force. He was a cheeky, brutal bastard, and I love him for that. I absolutely adore Glenn Phillips. मुझे तो वैसे ही बड़ी देर से प्लेयर पसंद है. And another hallmark of his innings was his electric running between the wickets. ये इसको ऐसी कोई स्पीडें लग जाती है, कोई नॉस लगाई है इसने अपनी मतलब जूतों में, ऐसे नसता है. बहुत he runs like crazy, man. He runs like a madman. And his time is now. इसका skill set अगर देखो ना, if you look at Glenn Phillips as an overall cricketer, he was always, a very, very high-tiered cricketer. But he hadn't really come off the way we expected him to. This innings might be the start of something special, Sadi. Hopefully it is. T20 commodity तो है ही है. I hope कि ये जो Champions Trophy है ना, all-timer Champions Trophy हो Glenn Phillips. I really do hope so. And what I love about him is that he is ठीक है, explosive batter है, but he can be versatile, and he plays all 3 formats for New Zealand, man. He even cut it in Test cricket. Yes. इसके skill set में अगर हम बात करें सादी, तो the man can bat explosively, he can roll over his arm quite effectively,
troubled India a lot lot. with his flight in that test series as well. He can field like crazy. ये तो अभी उसने हल्का कैच पकड़ा ना बाबर वाला, इससे भी ज्यादा crazy screamers पकड़े हुए, कुत्ते कैच पकड़े हुए इसने, ठीक है. And then of course, you know, he can keep wicket as well. Glenn Phillips for the longest time didn't come off in international cricket as we expected him to. But now he's starting to do that, right? और best बात ये कि he's an all format player for them. Hopefully ये जो है ना चैंपियंस ट्रॉफी उसके लिए ऑल टाइमर चैंपियंस ट्रॉफी हो. आई फील के this is his time now, जिस तरह हम कहते हैं. Yeah, his time is now. And hopefully people can't see him, man. Yeah, but Gaddafi definitely could see him. जो सारा crowd था, they were entertained. And I mean, look, he is versatile enough to cut it in all three formats. उनका main player है वहाँ पे. He adds so much balance to New Zealand's team as well. And I mean, look, end में तो उसने जो शाहीन साथ किया है, 25 रन तो उसने आखिरी ओवर में मारे हैं उसके, और उससे पहले भी 2 लगातार बैक टू बैक सिक्सेस मारे उसने. लाइक शाहीन को तो उसने बहुत ही जलील कर दिया, जो कि उस टाइम तक बड़ी अच्छी बॉलिंग करवा रहा था जब फिलिप्स उससे पड़ा था. उससे पहले he was brilliant, man. Before Glenn Phillips massacred Shaheen Shah Afridi, Sheeno was having a brilliant game. You know, undoubtedly. मतलब उसने he removed Will Young in the first over. And Shaheen Shah Afridi first over wickets just hit different. और ये थोड़ी डिफरेंट थी. This wasn't moving back in. LBW नहीं किया, ये बाहर निकली है. First he brought 2-3 deliveries in, and then he started to take them out. He should have had Will Young in the previous delivery. ठीक है, where Rizwan didn't have a second slip, and it kind of went in that vacant area wide of first slip. But then next ball Will Young was gone. उसके बाद second spell में Sheeno आया, then he got Kane Williamson, an important wicket, and he even removed Bracewell in his third spell. Right, so all 3 spells up until that point were going great, and then he got whacked so bad by Glenn Phillips that he ended up with 3 for 88 in 10 overs. मतलब 25 रन तो आखिरी ओवर में पड़े ही पड़े. Which I think, if I'm not wrong, किसी की मैंने ट्वीट पढ़ी थी, I'm sorry, I think it was Azim Siddiqui, उसने शायद लिखा हुआ था, it was the most expensive spell by a Pakistani in Pakistan. Yeah, well, I mean, best to double check that one, but you know, those figures, despite the 3 wickets, look quite horrific in the end, and that's all thanks to Glenn Phillips, man. मतलब penultimate ओवर में शाहीन के बैक टू बैक सिक्सेस, फिर क्या 2 चौके 2 छक्के, एक डबल, एक सिंगल, और 2 वाइड थी, और 2 वाइड भी थी in the last over. I mean, what a game for the big man. And yeah, I mean, throw out all of your John Cena references, man. एक चीज ये जरूर मैं बोलूंगा सादी के, I think this particular ODI will be remembered as the Glenn Phillips ODI. ये बता दो, इसी तरह दुनिया याद रखेगी यार. And I mean, look, he's hit form at a perfect time for New Zealand. आता भी lower middle order में है, and yeah, I mean, over भी निकाल जाते हैं उससे यार. फील्ड में he's a nuisance, भागता कुत्तों की तरह है. बस क्या, और क्या चाहिए? बस वो इंटरनेशनल क्रिकेट में कट इन करने वाली बात थी. T20 में तो मेरे लिहाज से फिर भी वो कुछ ना कुछ कर गया. वनडे में दिस वाज हिज फर्स्ट सेंचुरी, और अब मोमेंट आ गया. Yeah. और पता है इस तरह के कई प्लेयर्स हैं जो टैलेंट में बहुत रिच हैं, बट हैवंट बीन एबल टू परफॉर्म एज पर एक्सपेक्टेशंस. यू थिंक ऑफ Aiden Markram, right? You think of KL Rahul. Glenn Phillips was kind of hovering in that same area, but he's just so impactful कि ये आपको आधे घंटे में ही हरा देगा. And he did absolutely like pulverize both of Shaheen and Naseem with that 6 as well. And Pakistan were at the behest of Glenn Phillips, man. घुटने टेक दिए Glenn Phillips के आगे, आप कुछ कर भी नहीं सकते थे खास. The batting conditions had eased up by that moment as well. He took the game on and he took New Zealand to victory. अच्छा, शाहीन को तो उसने धोया ही धोया है. उसके अलावा जो है ना, पाकिस्तान मेरे लिहाज से थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया था जब हारिस रऊफ इंजर्ड हुआ. मैं थोड़ा सा नहीं, मेरे ख्याल से काफी. यहाँ पे एक फिर मसला आ जाता है ना, व्हेन खुशदिल शाह इज योर 5th bowling option, तो आप ऑलरेडी फिर एक बॉलर कम के साथ जा रहे हो. अब 2 बॉलर कम हो गए यार. अब कई बातें कर गए हो तुम यहाँ. Let's address them one by one. Okay, Haris Rauf's injury is a major cause for concern for Pakistan. सुना मैंने ये कि it's a low grade side strain. Now I'm not a doctor or a medical expert. I don't know how long that sort of injury takes to heal. ठीक है, but I think he'll be on ice till the Champions Trophy. They won't risk him. They shouldn't. And I mean, he was bowling brilliantly, man. बहुत अच्छी bowling करा रहा था. 1 for 23 in 6.2 overs. He was getting the ball to bounce awkwardly as well. He was so tight with his lines. He wasn't giving back an inch. बिल्कुल कोई रूम नहीं दे रहा था. ठीक है, विकेट टू विकेट bowling करा रहा था. Right in that good channel. Hard length भी करा रहा था. It's really, really unfortunate that he's had to go out injured. And I mean, I really hope that Haris Rauf can make it back in time for the Champions Trophy. But it's looking a bit scary, isn't it? नहीं, I think आ जाएगा. यार ऊपर से इतना परफॉर्म भी किया ना recent past में. ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज जिताई हारिस रऊफ. हाँ, it's like 10 days out. I think हो ही जाएगा. Hopefully they can have him back. But yes, I mean, अगर तो रऊफ इंजर्ड ना होता,
क्या पता चीजें कुछ डिफरेंट हो जाती एंड क्योंकि वो है भी उस फेस का बॉलर जहाँ पे पड़ी है ना बिल्कुल, और उसको रिजवान इस्तेमाल भी ठीक तरीके से करता है, उसके फेज में ही लाता है उसको, जो कि पुराने जमाने तो नहीं, पिछले कैप्टनसी टेन्योर में पिछले बाबर आजम नहीं करता था, बाबर आजम बिल्कुल भी उसको सही इस्तेमाल नहीं करता था, पावर प्ले में ले आता था. सो आई मीन राउफ इज एन इम्पोर्टेंट और इंटेग्रल कॉग इन पाकिस्तान यूनिट एंड ही इज द वन हू ब्रिंग्स ब्लिस्टरिंग पेस एज वेल इनटू द अटैक एंड ही इज अ मिडिल ओवर्स डिस्ट्रॉयर, सो एंड डेथ ओवर्स डिस्ट्रॉयर, राइट? वो उसकी स्किल्स, वो उसका यूएसपी है, मिडिल एंड डेथ ओवर्स. So Pakistan will need him. Hopefully he can come back. And Shaheen बेचारा यार वही वाली बात आ जाती है फिर कि having such a good game, ठीक है, pace was up too bro. मैं देख रहा था pace 140 करा रहा था, ऊपर थी काफी, and he was getting the ball to shape brilliantly, new ball. और फिर that ball straightened. Williamson wali in his second spell, and we've seen how good he can be with the old ball in recent times as well. Versus South Africa, there was that ODI in which he absolutely killed them with the old ball, right? सो हाँ, शीनो को मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, हो जाता है कभी ना कभी. कुछ लोगों ने ये ज़रूर बोला है ट्विटर पे मुझसे बात करते हुए ये चीज़ पॉइंट आउट की कि शीनो का एक सीन ये है कि when he's put under pressure, when he starts getting tonked, he gets tonked, he loses the plot. And we have seen that in the past as well. So take the learnings from this. Glenn Phillips का दिन था, पड़ गई आपको, आगे जाओ, आप इससे move on करो, and you're a very important part of Pakistan's elaborate puzzle. Obviously. Yeah. ठीक है, लोग सही डिसअपॉइंटेड भी होंगे कि ऑब्वियसली पाकिस्तान को जीतना चाहिए था ये मैच घर पे, लेकिन आई स्टिल फील कि इतनी बड़ी डील नहीं है इफ दे गेट देयर शिट सॉर्टेड until the Champions Trophy. I mean, they've shuffled a lot, right? अगर वो figure out ना किया ना तब तक, जो कि I think we pretty much figured it out up until the South Africa series. Yeah, man. I mean, I think they had a very good balance and composition. They won 3 ODI series on the bounce. और बड़ी अच्छा खेल के, ये नहीं कि मतलब बस तो कैसे जीते. All hope is not lost, ठीक है. But yeah, I mean, you have to figure stuff out in a very limited period of time, and if you don't even play the final, फिर आपके पास एक मैच रह गया चैंपियंस ट्रॉफी तक. That's the thing that's worrying me a lot. ठीक है, खैर शीनो की बात कर ली, you know, ठीक है, बाकी बॉलर्स पे आ जाए. Take some heart from this और mental strength दिखाओ and come back stronger and remind yourself of how well you were doing up until Glenn Phillips happened to you, right? And hopefully Haris Rauf is fingers crossed on Haris Rauf. Pakistan will need him. इतना अच्छा खेल रहा था यार, मुझे बड़ा मजा आ रहा था राउफ की बॉलिंग. अच्छा, उसके साथ होता यही है यूजुअली, जब भी वो इंजर्ड होता है ना, वो बहुत अच्छा खेल रहा है. नहीं, वैसे जब कलंदर्स के लिए इंजर्ड हुआ था ना, नहीं तो उसी मैच में तो आया था, उस मैच में ही अच्छा खेलने लग गया था और इंजर्ड हो गया था यार. खैर, बाकी if you go to the rest of Pakistan's bowling, Abrar was really good. I think Abrar was the pick of Pakistan's bowlers. He took 2 for 41 in his 10 overs. What I liked from Rizwan was that he introduced Abrar in the 6th over. Power play में ले आया and Abrar removed Rachin Ravindra. बाद में he got a bit lucky as well, got a bonus wicket. गंदी बॉल थी, बहुत गंदी बॉल थी, जिस पे डैरिल मिचेल आउट हुआ है, फुल टॉस थी बल्कि. But overall, Abrar was very economical, and I just noted yesterday that without the glasses, he kind of looks like Hassan Rasim. थोड़ा सा लगता है, एक हल्की सी झलक है हसन रहीम की. A bit older version of Hassan Rahim maybe. I suppose so. दाढ़ी जरा ज्यादा कर दो हसन रहीम की, बाल छोटे कर दो, जरा फायर डाल दो आंखों में, कुछ अब्रार विकेट लेकर फिर पंप तो हो जाता है. He has that fire in his belly. Look, I like Abrar Ahmed. I think he's done really well after breaking down versus England. ठीक है, and limited overs में उसका बहुत बड़ा रोल भी है. I'm not quite sold on him right now as a red ball bowler. लेकिन चलो limited overs में तो I think that he is Pakistan's frontline spinner. I would have liked some cover for him in the form of Sufi Mac, and you know, especially when Pakistan go to the UAE to play India. वहाँ पे कवर शायद थोड़ा ज्यादा चाहिए होता if it's a slow surface, क्योंकि वहाँ पे हमारा फिफ्थ बॉलर होगा खुशदिल शाह ब्रो. यही तो मसला है यार. अब देखो, I don't want to berate खुशदिल. I think this is a very important series for him because of the role he's been given as an all-rounder, but I don't think he's a genuine all-rounder, Sadi. Let's take his figures to one side. ठीक है, 9 overs में none for 66, not impressive. पिटे तो काफी लोग हैं, but he's not incisive either. Not at all. And I personally feel, you can challenge me on this, or you guys can as well. मेरी जो राय है ना, my personal feeling with respect to Khushdil the bowler is that when he's bowling outside of the power play, he is a part-timer. Yeah, मेरे लिहाज से उसकी best bowling आती भी T20 में. When people look to target him. Yep. In the power play. यहाँ नहीं, overall भी मिडिल फेज में भी आता है, तो वो उसको टारगेट करते हैं ना कि इसको मार सकते हैं, तो वो वहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है. ODI क्रिकेट इज अ बिट डिफरेंट. यहाँ पे भी अगर पावर प्ले में भी ले आए ना, तो आप इतने गंग हो
नहीं हुए होते, आप वहां पे कंसोलिडेट कर लोगे या कुछ कर लोगे. आई डोंट थिंक ही इज इंसाइसिव इनफ, जो कि सबसे बड़ा इशू है मेरा. इंसिजन इज द इशू. और दूसरी बात ये कि आपके पास शाहीन और नसीम है पावर प्ले में, तो एक वो भी रिस्क आ जाता है. अबरार को भी आप यूज करना चाह रहे हो पावर प्ले में. अबरार इज डन वेल इन द पावर प्ले. ही शोड यू इन दिस गेम दैट ही कैन टेक अप और टेक अ विकेट और टू इन द पावर प्ले. तो अबरार का ये है कि एक तो चलो अच्छी चीज ये हुई है कि आपका फ्रंट लाइन स्पिनर परफॉर्म कर रहा है जिसने सारे मैच खेलने हैं. यू ऑलरेडी नो दिस. ठीक है. खुशदिल का ये है यार, फिगर्स असाइड, run for 66 is 9 overs is not good. ठीक है. It's not stellar by any means. It's not even like average. It is below average. चलो let's keep them aside, क्योंकि चलो मैं इतना लीवे दे सकता हूँ कि पहला मैच था, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ. Let's wait and see. But problem is यार, we know Khushdil is not a fifth bowler. He's a sixth bowler at best. ठीक है. तो यार ये टीम कॉम्पोजिशन जो है ना, जिसके अंदर आपके 10 ओवर फिफ्थ बॉलर के इस तरह पड़े हुए हैं, this might go on to haunt Pakistan big time. And I've been singing this song for a while, Saadi. मैंने ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका सीरीज में भी बोला था कि फिफ्थ बॉलर का मसला है, बट देन साइम स्टार्टेड डूइंग वेल, राइट. उसका लॉस आपको सिर्फ बैटिंग में नहीं, बॉलिंग में भी फील हो रहा है. सैलागा हो गया था, तो वो बैलेंस आउट हो गया, वो कुछ ना कुछ बैलेंस बन गया था. प्लस रिजवान की जिस तरह की कप्तानी जा रही थी, ही वाजंट रियली सेविंग एनी ओवर्स फॉर द फिफ्थ बॉलर. वो स्टीम थ्रू कर रहा था लाइनअप्स के विद हिज मेन बॉलर्स. सो दिस इज एन इशू. And I don't know how Pakistan will address it. तुमसे एक सवाल पूछना है और आप लोगों से भी एक सवाल पूछना है. How was Shadab Khan worse than this? Yeah, I don't get that. In Shadab Khan, you get a terrific fielder as well. You get an able hitter, and you get an experienced player who has done it at the big stage prior. He was your MVP in the 2022 T20 World Cup. 2021 में भी बहुत अच्छा था. He was very good in the 2019 ODI World Cup, from what I remember. अच्छा था Shadab, middle overs में wickets भी ले रहा था. ठीक है, फॉर्म बहुत गंदी लगी थी उसकी, लेकिन आई डोंट थिंक कि इतना कोई मैसिव अपग्रेड कर लिया खुशदिल या बाकियों को ऐड करके. बैलेंस वो बेहतर प्रोवाइड कर रहा था मेरी नजरों में भी बेहतर कर रहा था. इफ ही इज हैविंग अ डे ही कैन बोल मोर ओवर्स. इफ ही इज नॉट हैविंग अ डे, सलमान अली आगा कैन पिच इन एंड काइंड ऑफ, यू नो, जो कि मतलब इस दफा करना पड़ा सलमान अली आगा को, क्योंकि रऊफ इंजर्ड हो गया. या वो तो अनफॉर्चुनेट था. एंड सलमान अली आगा वाज बॉलिंग वेल. एंड में थोड़ा पिट गया. आई मीन ऑलराइट. एंडेड विद नन फॉर 31 एंड 4.4 ओवर्स. बट बीच में जब शुरू कराई थी बॉलिंग, ठीक करा रहा था. ही वाज गेटिंग सम टर्न मैसिव. नहीं, पहले ओवर में नहीं से 2 छक्के पड़े थे. आई फील नहीं एंड में पड़े. या एक पड़ा होगा शुरू में, वही फिलिप्स की फेंटियां. ठीक है, झाड़ू चलाता है वो और लग जाते हैं. बट या आई मीन लुक, पाकिस्तान विल नीड टू थिंक हार्ड अबाउट दिस कि फिफ्थ बॉलर का क्या करना है, क्योंकि आई डोंट थिंक खुशदिल एंड सलमान कैन शेयर दोस ओवर्स. मसला पड़ जाएगा. अगर तो लेफ्टी लगा हुआ है तो लाओ फिर जल्दी सलमान को और निकालो ओवर जितने निकाल सकते हो. लेकिन फिर मसला पता है क्या, चलो फिफ्थ बॉलर तो नहीं ठीक आपकी कॉम्बिनेशन बन रही, उसके अलावा जो नसीम शाह है ना, उसकी फॉर्म भी बहुत ज्यादा बड़ा क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर. कि वो it's all relative, because Naseem Shah prior to this game had 42 wickets in 20 games or something, average of 20. But in this game he went for none for 70. लेकिन वो फिर ओवरऑल करियर है ना उसका, रीसेंट पास में अगर देखा जाए तो नसीम शाह उस तरह का बॉलिंग नहीं करवा रहा. He hasn't been as demonic, not even close as he was in his early days. और might have lost a bit of bite. देखो 70 रन दिए शाहीन से तो कम ही थे, मगर 70 runs are still a lot of runs. शाहीन को तो फिलिप्स पड़ गया था. या इसको भी खैर एक छक्का कुत्ता मारा है फिलिप्स ने. बट लुक, नसीम थोड़ा अनलकी भी हुआ शुरू में. अनलकी तो हमेशा होता है. चॉप ऑन कर सकता था, विलियमसन नहीं किया उसने. ठीक है. एंड आई थॉट हिज इनिशियल स्पेल वाज गुड. आई लाइक्ड हिज इनिशियल स्पेल. स्टार्ट में ठीक था. बाद में जाकर कुछ खास बॉलिंग नहीं कराई. लुक, लेट्स होल्ड आवर रिजर्वेशंस ऑन नसीम शाह. नॉट गुड. None for 70 is not good at all, but in his last 2 ODIs, he took 5 wickets. So that's also fine. ठीक है. And I thought he was all right in South Africa. हाँ ठीक था, लेकिन मतलब वो वाला नसीम शाह नहीं, वो मैजिक नहीं नजर आ. बट मे बी आगे आ जाए. You've got to stick with him. हाँ, ये तो नहीं आप कर सकते कि आप नसीम को काट दो. Obviously अब जब हारिस रऊफ पे भी अभी क्वेश्चन मार्क्स है, तो नसीम और शाहीन तो होपफुली फिट रहे. And then you've got Hasnain as backup for Rauf. इस सीरीज में तो आपको देखने को मिलेगा Hasnain. आगे देखते हैं क्या होता है. पाकिस्तान बॉलिंग. डू यू थिंक हसनैन खेलेगा? हाँ, राणा फहूम तो नहीं हार. नहीं, अभी तो हसनैन ही खेलेगा यार. डेफिनेटली हसनैन खेलेगा अगले मैच में. होपफुली फिल इन फॉर हारिस. होपफुली. इनका कोई पता नहीं. इनका कुछ पता तो नहीं होता वैसे. बट आई थिंक पाकिस्तान बॉलिंग इज स्टिल नॉट एज बिग ऑफ एन इशू एज ऑफ नाउ. As their batting. बैटिंग जरा ज्यादा बड़ा इशू है, और कॉम्बिनेशन आपने बिल्कुल उल्टा पुल्टा कर दी है. ठीक है. एंड विल कम टू ऑल ऑफ दैट. आई थिंक बॉलिंग में थोड़ा और देखते हैं. शीनो हैड अ हॉट एंड कोल्ड day. Obviously really hot at the start. Good first half, second. ज़्यादा यार. Good first 80% of his overs. आखिरी 2 ओवरों में बहुत पिट गया. ठीक है. उसके पहले तो ठीक जा रहा था. I would say कि he was having a splendid game.
और सीबो का ये है कि चलो होपफुली कैन टर्न दिस अराउंड. हारिस रऊफ की जगह महसूस होगी आपको, वो वॉइड महसूस होगा. Hopefully Hasnain can do it. Hasnain जो है he can do a job over there. Abrar से no issues. Abrar was good. Very happy with Abrar. Fifth bowler, massive question mark. Massive. पता नहीं क्या करना है उनके. क्या करना है बताओ. I have no idea. You guys share your thoughts in the comments as well. And before we come to Pakistan again, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग में बथेरी. जरा न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात कर लेना. न्यूजीलैंड की बैटिंग. फिलिप्स के अलावा भी बहुत लोगों ने अच्छी इनिंग्स खेली. Some of their other batters performed really well. Kane Williamson made his comeback to ODI cricket. After the World Cup, I believe. This was his first ODI game after the 2023 ODI World Cup. Same for Fakhar, by the way. Yeah, same for Fakhar. So Kane struck 58 of 89, a very slow innings. In fact, he got his half century in 82 deliveries, Sadi, and that is his slowest ever half century in ODI cricket. And he has 46 of them. ठीक है, 46 ODI half centuries में से. बॉय अपना टाइम ले रहा था वापस आने में. टाइम ले रहा था, स्लोएस्ट थी, और पाकिस्तान अच्छी बॉलिंग भी करा रहा था. उसके बाद फिर देखो ना, उसने एक एंड होल्ड कर लिया, उसके बाद वो फिर गए ना 330 तक. या 330 तक पहुंचा दिया उसने, प्लेटफॉर्म आपको दे दिया. लुक, I think Kane was very dodgy at the start, particularly versus pace. बहुत ज़्यादा dodgy लग रहा था. Like we mentioned, नसीम के खिलाफ lucky भी हुआ. That inside edge was very close to the stumps, right? But then he's always been elite versus spin. He uses his feet to perfection. Brilliantly, honestly. मतलब जिस तरह वो नीचे आकर pitch of the ball पे meet करता है बॉल को, that is Kane Williamson. और एक इसका वो dab towards third man है. देखा नहीं हमने, but we know he can do that really, really well. Back foot punch भी solid है Kane का. Back foot punch तो मतलब मेरे लिहाज से one of the best ever. One of the best ever, undoubtedly. But versus spin, he was looking at his brilliant best. ठीक है. Easy peasy. कोई इतना मुझे मसला नहीं है इसकी स्लो इनिंग से. पहला उठ गया, आप इतने अरसे बाद खेल रहे हो और उसके बाद आपने प्लेटफॉर्म सेट करके दिया, तो मुझे मेरे लिहाज से obviously बेहतर होना चाहिए इससे, लेकिन ओडिया गेम ही ऐसी है. यार he also batted at a time where conditions were tricky. ठीक है, ये तो देखो surface थोड़ा awkwardly कर रही थी behave. You know, I feel like if anything Pakistan got the better of the batting conditions, क्योंकि शुरू में low bounce था काफी. हारिस रऊफ के खिलाफ काफी awkward bounce था. कई दफा बॉल लूप करके ऊपर गई है या हुप करके गई है. हुप नहीं, लूप ही होगा. Yeah, so I feel like even in the New Zealand innings बाद में conditions ease हो गई थी, remained easy there on. But Kane की अगर आप innings को देखो तो वो मुश्किल टाइम पे आई थी, and he did consolidate, and I mean they look to him versus the spinners as well once he gets going. और पेस के खिलाफ चलो देखते हैं आगे कैसा जाता है. और ये बहुत ज़्यादा crucial होगा इनके लिए चैंपियंस ट्रॉफी में. Of course, Pakistan, India and Bangladesh. Yeah, and I mean he has been New Zealand's spine in that batting order for so long. I wouldn't make too much of this slow knock. I think chalo he spent some time out of the middle, scored some runs, scored a 50, good enough. ठीक है. उसके साथ Daryl Mitchell. Wow. Yeah, that was a really, really good innings. Really good innings. 81 of 84 deliveries and शुरू में भी lucky हुआ. Yeah. Out था, gone for all money. You know, Babar missed his run out. वो direct hit लग जाती. pitch पे था. Yeah, if he was run out over there, he would have walked back for a duck. ठीक है, and his duck was like he was what, none of 9-10 deliveries. ऐसा कुछ चल रहा था. हमारी डायरेक्ट हिट सिर्फ तब लगती हैं जब अपने क्रीज में खड़े होते हैं, आराम से चिल कर रहे हैं, तब डायरेक्ट हिट लग जाती है, वरना नहीं लगनी. सो खैर चलो, रन आउट मिस किया, डायरेक्ट हिट मिस किया, नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. बट सिर्फ वो फॉर्चून नहीं एंजॉय किया इसने, ये राउफ के खिलाफ सर्वाइव किया. हारिस राउफ वाज रियली ट्रबलिंग डैरल मिचेल, और वो वही लूप की थी बॉल, गई नहीं किसी के पास. बट या आई मीन ही सर्वाइव्ड दैट ट्रिकी पीरियड एट द स्टार्ट, वाज़न्ट गेटिंग गोइंग. उसके बाद तो ही बिकेम डैरल डाउन द ग्राउंड मिचेल. क्या खूबसूरत शॉट मारता है इसका, ये यूएसपी है, ये बुचर करता है बॉल को डाउन द ग्राउंड, particularly versus spin. वैसे तो फास्ट बॉलर्स को भी चिपका देता है ये डाउन द ग्राउंड, मगर स्पिनर को तो ये पूरा खा जाता है. मतलब और क्या ही एडजेक्टिव इस्तेमाल करें, ही इनहेल्स स्पिनर्स डाउन द ग्राउंड. और स्ट्राइक रेट भी फिट था, 81 of 84. नहीं, और अगर आप देखो तो शुरू में इसने ट्रिकी पीरियड सर्वाइव किया, देन ही वेंट अ बिट ballistic, स्पेशली ऑल दोस शॉट्स डाउन द ग्राउंड, एंड देन ही कंसोलिडेटेड अगेन. ठीक है, जब केन आउट हुए उसके बाद बिफोर ही गॉट आउट ही वाज अटैकिंग अगेन. यू नो, ही रॉक्ड बैक एंड स्लैम्ड बोथ ऑफ खुशदिल एंड अब्रार फॉर 6 बिफोर ही गॉट आउट. तो एक अच्छे नोट पे इसने इनिंग्स एंड की है अपनी. इट वाज अ वेरी वेरी सॉलिड नॉक. अनलकी आउट दो. आई थिंक प्लेटफॉर्म जो सेट करने की बात आती है उसमें मिचेल का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है. विलियमसन वाज देयर, लाइक यू सेड, ही वाज होल्डिंग वन एंड, बट मिचेल केप्ट द क्लॉक टिकिंग. ठीक है, और वो रन रेट उसने स्टेडी रखा. वो पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल थी, बहुत क्रूशियल थी. एंड आई मीन आई डोंट नो हाउ लोकल लाहौर फैंस वांट टू लुक एट दिस. इट माइट बी अ बिटर स्वीट फीलिंग बिकॉज़ ऑफ कोर्स आपकी पाकिस्तान की टीम को मार रहा था, बट देन कलंदर, ही इज आल्सो अ न्यू लाहौर कलंदर. उसने बल्कि हुडी के साथ तस्वीर भी खिंचवाई हुई थी.
और हाँ मतलब 100 लिखा हुआ था इसका, गंदा आउट हो गया, बहुत गंदा आउट हुआ. The sort of dismissal where he would be kicking himself in the dressing room. But that's fine. He did his job. And Daryl Mitchell is one of those players amongst that long list of New Zealand players जो कि बने बनाए आ जाते हैं स्टेज पे. वो आते ही लेट है. हाँ आते ही लेट है, एक्सपीरियंस लेकर आते हैं डोमेस्टिक में, and as soon as they come they make the most of it, man. और इस तरह के प्लेयर्स चलते भी लंबा है because they want to make up for lost time. And Daryl Mitchell मतलब is a fit dude. He can also roll over his arm. He's a very very good fielder and he sweats like a madman. ऐसे पसीने निकलते हैं boy के भाई, ये वो हेलमेट नीचे करता है, बाल्टी निकलती है. ठीक है, crazy scene है Daryl Mitchell का, the way he sweats is so peculiar. He's got to be one of the players or batters in all of cricket who sweats the most. I mean मैंने कभी नोटिस नहीं किया लेकिन बहुत ज्यादा. Yeah, crazy. और कौन है वैसे? मतलब पता नहीं, इस जब Daryl Mitchell का पसीना देखते हो बाकियों का भूल जाते हो. But yeah, really really good outing for both of these guys. Mitchell more so than Kane, but Kane का भी यार चलो इतनी देर बाद ODI खेल रहा था, got a 50. That's good work. बाकी I feel that New Zealand might have even missed a trick over here by not playing Mark Chapman. In place of who? Tom Latham. तो कीपिंग कौन करता? ओ हाँ, क्योंकि कॉनवे तो नहीं खेल रहा. तो फिलिप्स फिर बॉलिंग कौन करता? आई फील के नेक्स्ट मैच में क्योंकि रविंद्र जो है उसको लग गई है यार. आई होप ही इज ओके बाय द वे. बहुत अगली सीन्स थे, बहुत ज्यादा. मेरी पड़ गई थी. That was horrific to watch. अब कुछ लोग कह रहे हैं लाइट्स का मसला था, but honestly लाइट्स के अंदर भी बॉल लूज हो जाती है. और लाइट्स वैसे थी तो बहुत ऊपर. So I don't know what to make of that. A lot of people were going crazy on Twitter. काफी तनकीद करते कि वो लाइट ठीक नहीं है, ये वो नहीं है. Look, this is not the first time we've seen a fielder lose the ball under lights. और ICC approved लाइटें होती हैं यार, क्या हो गया? Yeah. So it was गली मोहल्ले की क्रिकेट नहीं चल रही है. It was a very horrific blow. और सर पे थी, and blows to the head should be taken very very seriously. And the way the blood was oozing out. I mean, I don't know why they were showing it to everyone. शुरू में दिखाया, उसके बाद उठा. नहीं, काफी देख लिया था यार. मैं कहता हटाओ इसको, ये किसी को देखने की जरूरत नहीं है. और the crowd went silent. No one cared about the dropped catch. No one cheered the dropped catch. You know, it was really really ugly. I really hope he's okay. मैंने यार बेचारे को बोला हुआ था कि ये लीडिंग रन स्कोरर बनेगा. मेरी प्रेडिक्शन तो ये थी. बाय द वे वो अपडेट भी आई है उस पे कि इट्स जस्ट अ लैसरेशन. अभी जरा देख रहे हैं उसको, मॉनिटर कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज्यादा इशू नहीं है. Cautious update बोला था दानियाल ने. So I think I really hope everything's okay over there. No one wants to see this. And नहीं, he's fine. He's fine. मैंने अभी पढ़ी. Rachin, speedy recovery. We wish you a speedy recovery. And we want to see you in the Champions Trophy. We definitely do. And we want to see you light up the stage as well, because we're both fans. एक तो फिर लेफ्टी भी तो है ना यार. और यार जब तक खेल रहा था, क्या कवर ड्राइव मारी. कवर ड्राइव, स्ट्रेट ड्राइव, जिस खूबसूरती से ड्राइव करता है, ऑन द अप भी कभी-कभार ड्राइव करता है ना, बहुत बहुत प्यारा लगता है. Really aesthetically pleasing bat. Yes. अच्छा. And he also is so multifaceted. Can bowl as well. Did bowl a bit as well. So yeah, I mean, अब खैर, I think he won't be playing the next match, so maybe they can bring in Conway and keep with him, and Latham की जगह Chapman ले आओ. ये होना चाहिए मेरे ख्याल से. Even though New Zealand didn't miss Chapman much, because क्योंकि ब्रेसवेल और फिलिप्स ने पूरा कर दिया था. ब्रेसवेल भी बहुत अच्छा किया. फिलिप्स and ब्रेसवेल ने बहुत अच्छा मारा है. ब्रेसवेल scored 31 or 23. He was really really good. उसने भी छक्के लगाए एक दो. ठीक है. और ये जैद बाबर खान जो है हमारा friend of the podcast, works at Park Passion, and you'll see him multiple places. मेरा former colleague है grassroots cricket पे, स्पोर्ट्स साइड पे भी आता है, all rounders den पे भी आता है. You see him all over the place. So Zaid is hustling hard. Go show him some love. जाकर उसको follow करो Twitter वगैरह पे. He gave me a very good interesting stat. He said that in the last year, since 2015, so 10 साल, in the last decade, the average runs per over in Pakistan in the last 10 overs is 7.87. Okay. ठीक है. And in Lahore, it's 8.03. Okay. New Zealand went at 12.3 yesterday. So they made the most of the last 10 overs. 123 मारे थे ना इन्होंने. Exactly. Last 10 overs. Yeah. So they went ballistic, obliterated Pakistan. Bracewell और Phillips का इसमें बहुत बड़ा हाथ है. And they kind of took that game beyond Pakistan over there. I know 330 Pakistan chase कर भी सकती है. इस तरह की surface पे चांस होता भी है. 400 में किया हुआ चेस. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी किया था आपने यार. चेस किया था, लाहौर में ही किया था. लेकिन वो थोड़ा सा मसला पता ही क्या है, अब पाकिस्तान पे जब आएंगे तो मैं वो जरा कॉम्पोजिशन इस तरह की हो गई है कि थोड़ा डर लगता है. But point is that they kind of did take the game away in terms of both momentum and the target from Pakistan. अगर 300 भी होता ना, people would have felt a bit more confident. 330 पे batting side is always favourites. I mean, unless it's an absolute belter.
It wasn't a belter. It was a good pitch. It was a good pitch. It was really good. अच्छी और सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करना ज्यादा आसान हो गई। या लेकिन मैं बस मसले हमारी बैटिंग के है भाई। बट चलो खैर देखते हैं अपना जानी चैपमैन आता है अगले मैच में कि नहीं आता। यार ये सेगवे मारने में सोचता है ये मैं जानी कब मारूंगा। आप लोग भी जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड में एक स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम और मेरे से और बाकी सारे जानी से इंटरेक्ट कर सकते हो और भी काफी ज्यादा एक्टिविटीज हो सकते हैं उसमें। अभी अमार जहीर ने एक लॉन्च किया चैंपियंस ट्रॉफी प्रेडिक्टर। आप बोल लो। अमार जहीर नहीं, अमार जहीर है उसका नाम। यूनिस का चैंपियन अमार जहीर तो यूनिस का चैंपियन, यासिर तिशान मसूद भी चैंपियन। और अभी शेख ने भी कोई अपडेट भेजी हुई हो, उसके बाद देखेंगे कोई हम फैंटेसी लीग भी कर रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, सो यू कैन जॉइन द जानीज चैट। 2-3 तरीके हैं उसके। सबसे पहले पेट्रियन, जिसकी सब्सक्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में जाना पड़ेगा और वहां से आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके अलावा इजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर। 1500 पर मंथ पे आपको मंथ की सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी। वरना डिस्कॉर्ड अगर ज्वाइन करना है तो वैसे कर सकते हो। इट्स ओपन फॉर ऑल। मगर ये जो मजे की चीजें ना, एक्सक्लूसिव चैट्स विद साद एंड माय सेल्फ एंड ऑल ऑफ दीस कॉम्पिटिशंस, ये जानीज के लिए रिजर्व्ड है। उसके अलावा अगर इनके पास इजी पैसा नहीं है तो बैंक अकाउंट ट्रांसफर भी हो सकता है मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो इंस्टाग्राम या ट्विटर पे। वहां पे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। बहराम को ना करना, मुझे ना करना, वो नहीं देगा डिटेल्स। मैं आपको साथ की तरफ ही टोर दूंगा। पहले भी बड़े लोग मेरे पास आए हैं, मैं यही करता आ रहा हूँ। और अभी तो यार मेरी नई शादी हुई है, मुझे जरा एंजॉय कर। लेकिन फिर भी ट्विटर पे उतना ही एक्टिव होता है। वैसे मैं हूँ बहराम यंग हस्बैंड। क्या पास कर दो यार ये जोक। अभी मुझे ओल्ड हस्बैंड होने दो ना, फिर चला जाएगा ये जोक। अच्छा बताओ फिर, और अगर तरीके नहीं है, आई मीन और क्या तरीके हैं? Yeah, I mean, if you still don't have online banking in 2025 and basically live under a rock, then we've still got you covered, man. Saad and I live in Islamabad. E113 का जो मरकज है उसी के अंदर हमारा ऑफिस भी है और स्टूडियो भी है। आके हमें ढूंढो और हमारे मुंह पे मारो 1500 रुपए। स्कैवेंजर हंट हमें ढूंढो। कर दे एक दफा। तो पर 1500 रुपए की पेमेंट we will make you Johnny's of the podcast for 1 month. And of course there are other ways. You could gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. पाकिस्तान क्रिकेट की नाउ, क्योंकि वो रेडिली अवेलेबल है पीसीबी की वेबसाइट पे जो उनका स्टोर है। बट और कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी टीम हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल, इट डजंट मैटर, बस ऑथेंटिक और नॉक ऑफ नाउ। एंड पर जर्सी वी विल मेक यू अ जानी फॉर 6 months. And I highly encourage you guys to become Johnnies of the podcast, because Saad and I, we are on a mission. And our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. We've had enough of this sensationalism and masala-dar khabrein, ye jo sansani-khez khabrein no masala base. No masala base anymore. We want to promote and are promoting intelligent sport discourse. And, we try to enrich your sport watching experience through the podcast and the Johnny's chat. But we want you to come and enrich ours as well. We are not know-it-alls. We are students of sport. We are constantly learning and upskilling. तो आए, हमें challenge करें, debate करें, मगर तमीज के दायरे में। तमीज। No racism, discrimination, abuse, misogyny or homophobia will be tolerated. ऐसी कोई भी instance हुई, we will chuck you out instantly. बार सीधा काट देंगे. We have zero tolerance for this kind of bull crap, and we are an inclusive community which welcomes everyone. Doesn't matter where you come from. Yes, sir. And just to close off, want to say a massive thank you to all of our existing Johnnies. We adore you guys. आप दिल के बड़े करीब हो हमारे. I look forward to talk to you guys, and your money goes a long way. It's not like Saad and I are pocketing this money. हमारी जेब में थोड़ी जा रही है. These funds go towards making this podcast financially feasible. And if this podcast is a financial success, we can bring even more grade A sports content to your screens. और यार गलतियां हमसे होंगी, हुई भी है, ठीक है? इधर ये शो पे आके we will own up to them and take ownership. और हम भी अपने आप को अकाउंटेबल रखते हैं, मगर आप भी हमें अकाउंटेबल रखो और करो कॉल आउट जहाँ पे करना है। हाँ, करो बिल्कुल करो। तमीज के दायरे में रह के जहाँ हम गलत हैं या आपका ओपिनियन डिफर करता है, कमेंट्स में लिखो यार। बिल्कुल करो तमीज के दायरे में। बट एक आपको प्रॉमिस ये है यार कि जहां तक होमवर्क प्रिपरेशन और तैयारी की बात आती है, वी विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। कोई कसर नहीं छोड़नी हमने। जिस तरह सादी बोलते हैं हैशटैग सीधा टेक ओवर एंड हैशटैग फिक्स योरसेल्फ। यू कैन गो एंड फिक्स योरसेल्व्स। अच्छा, जानी की तो बात हो गई, फौजी पे आ जाओ जरा। Fakhar Zaman, welcome back, sir. The Marine, the lone warrior for Pakistan with the bat in this game in particular. 84 of 69 in his comeback game after illness. बार फखर आकर कह रहा है कि a lot of people, he appreciates the love and support, but थी वो illness जिसकी वजह से बाहर था। Hyperthyroidism? हाँ, ऐसा कुछ था। अगर सही निकल गया ना ये बट खैर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिला था फखर को, और उस पे मोहसिन नकवी ने आकर देखो ट्वीट का जिक्र किया ही था along with his fitness. डिसिप्लिनरी इशू भी था और ऑब्वियसली इलनेस भी थी, वो जब कह रहे तो होगी। हाँ, नहीं वो क्यों झूठ बोलेगा। बट लुक, a splendid knock. It looked like he never left. क्या खूबसूरत शॉट है। Picked up right from where he left, bro, क्योंकि he had struck
struck form at the end of the ODI World Cup. जब न्यूजीलैंड को ही मारा, यार न्यूजीलैंड को ही मारता है हमेशा। याद है इसने एक सीरीज में कोई 300 भी ठोक दिए थे, वो भी न्यूजीलैंड को ही मारा था। शायद बैक टू बैक ठोक दिए थे फखर ने, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। बैक टू बैक 3 पता नहीं, ऐसा कुछ किया था इसने। I don't think so. He did something like that. He loves batting versus New Zealand. He has over 1,000 runs in ODI cricket versus New Zealand. Obviously, he's played them a lot too. But उसकी favorite side है ये. He is a New Zealand specialist. जिस तरह ब्रेसवेल बाबर आजम specialist है ना, फखर जमान New Zealand specialist है। Specialist तो नहीं, बाबर तो खैर बनी बन गया। हाँ, it is a bit of a bunny situation. We'll come to that as well. फखर की पहले अच्छी तरीके से बात कर लें। मजा करा दिया मज्जू, ठीक है। And up until Fakhar Zaman was out there, the chase was on. Yeah. ठीक है, and it was crazy how when he got out, Pakistan had 117 runs. 84 तो फखर के थे। और जहां आपने फिलिप्स की एक्सेलरेशन की बात की है यार, फखर की भी देखो। 48 बॉल्स में इसकी 50 आई है, which was fast as is, and then 69 बॉल्स में 84 की है। So had he just gone on for I'd say another 10 deliveries, 100 भी आ जाना था। अच्छा, इसकी मैं एक स्टैट ढूंढ रहा था जब तुम बात कर रहे थे, जो कि मैंने कल टीवी के ऊपर देखा था। दिस इज वेरी इंप्रेसिव स्टैट। Openers with 3,000 plus runs with an average of 45 and a strike rate of 90 plus. अच्छा. So Rohit top पे with 55 average and 95 का strike rate. And a lot of runs. हाँ. Runs को अभी रहने मैं order में ही बता रहा हूँ. रोहित टॉप पे, फिर वार्नर है, डिकॉक है, वॉटसन है, एंड देन फखर जमान। फखर जमान की एवरेज इन चारों में से सेकंड नंबर पे, राइट आफ्टर रोहित। और स्ट्राइक रेट इज 93 व्हिच इज फोर्थ। सो आई मीन मतलब ये है उसका कैलिबर। He finds himself in elite company. You know, ये बहुत बड़े प्लेयर्स का नाम लिया तुमने। These are legends of the game. शर्मा, वार्नर, डिकॉक एंड वॉटसन ब्रो। Yeah, फखर जमान का नाम उन लोगों के साथ आ रहा है। I mean, look, he is an underrated player. He's not as celebrated as he should be. He is a match winner. He's a big game player. Match winner. And he is a destroyer of New Zealand. He's not a youngster anymore. न्यूजीलैंड को ये वो क्या दमपुख्त वगैरह खिलाकर। Man, I had दमपुख्त on Friday night. अच्छा, कैसा था? God. दमपुख्त जगह का नाम है पिंडी में। अच्छा, क्या दमपुख्त था। चलो फिर कभी ट्राई करते हैं। मैंने वैसे कभी जिंदगी में दमपुख्त खाया नहीं है। उसके साथ थे कोई मटन ब्राउन टिक्के। ओए यार, तुम अकेले चले जाते हो उस ब्रो, वो कुछ अलग ही सीन था ब्रो। क्रेजी। वो मटन ब्राउन। मैंने तुम्हारे साथ वहाँ भी जाना है, आरिफ समथिंग जो चटखारा है, समथिंग आबिद चटखारा। नहीं, वो तो लाहौर वाला है। मैं भूल गया वो नाम। मुझे मानू लोगों ने वो कढ़ाई खिलाई थी। वो कढ़ाई तेरे साथ मैंने एक दफा जरूर खानी है, ठीक है। वो बड़ी क्रेजी कुत्ती कढ़ाई है वो, ठीक है। बढ़िया। फखर जमान के उसने आपको क्रेडेंशियल्स बता ही दिए, ठीक है। 5 बड़े बड़े ओपनर्स में उसका भी एक नाम है, एंड ही इज ट्रम्प कार्ड फॉर पाकिस्तान। जब वो चलता है तो पाकिस्तान बहुत अच्छा करती है, एंड चांसेस ऑफ विनिंग इंक्रीज 10-fold. And look, I mean, if you look at his vast array of shots that came out yesterday, एक तो यार वो शुरू में ही ना, he played that whisk through point. मैंने कहा आज जब भी ये लग गई ना वो फॉर्म में, जब भी फखर की ये शॉट लगती है ना, मैं कहता हूँ आज ये चलेगा। और उसकी वो शुरू में ही लग गई। हेनरी को पहले उसने he whisked him through point, and then he also worked him off his legs for 4, और फिर उसने ओवरऑक का जो हशर किया है, एक तो he bludgeoned him down the ground over his head for 4, then he worked him over third man for 6, proper guide किया है। आउट होता तो बच गया था वैसे, मगर बहुत प्यारा शॉट था। मुझे रिस्की शॉट लगी। And then he pulled him right out of the screws. I mean, pick the bones out of that kind of six, man. उसके बाद जो उसने एक huge six मारा था ना मिड विकेट पे, वो Sears को यार, वो he charged Sears and went downtown and went massive. बहुत ही कोई towering six था वो. It was an amazing shot. और वो pull shot भी बड़ी crazy थी। कमाल। I mean, it was a brilliantly timed shot. And then versus spin, he was using his feet consistently and he went big in that mid wicket region. बार रीजन उसका है। हाँ, वो तो रीजन उसका है। वैसे उसने वो मोस्ट ओवर मिड विकेट नहीं मारी है, वो भी उसकी शॉट है, मगर स्पिन के खिलाफ वो मिड विकेट पे मारी जा रहा था, और कदमों का इस्तेमाल करके। कदमों का इस्तेमाल। एंड लाइक आई सेड मैन, व्हेन ही गॉट आउट, पाकिस्तान स्कोर वाज 117, 84 तो फखर के थे। इट वाज बेसिकली अ वन मैन शो। ये तो मसला है। इट वाज अ वन मैन आर्मी। मतलब लिटरली एक बंदा चला। या और बाकी सपोर्ट स्टाफ ने तो बिल्कुल हक दी है ना। लोअर डाउन द ऑर्डर, दो decent-ish innings team, that's it. Yeah, it's such a shame that we won't get to see Fakhar open with Saim. That was it. Hopefully it won't remain as a pipe dream. No. Hopefully we'll get to see it at some point. But Champions Trophy में Fakhar Saim open कर रहे होते ना साथ, सुकून होता। मैं कहता हूँ कि बस दोनों में से एक ने चलना था, और आपके चांसेस एलिवेट हो जाते। जिस तरह की फॉर्म है, आई थिंक दोनों नहीं चलना। अगर दोनों चल जाते फिर तो आप मैच ही नहीं हार सकते थे। Right, that's such a major blow, really, and Fakhar rates Saim highly as well. वो कहता है कि next बाबर आजम, मतलब उस लेवल का प्लेयर ही बनेगा। खैर बाबर तो I mean
थोड़ा अरसे पहले वाला अगर बाबर आजम बनना चाहता है तो बन ले, रीसेंट वाला तो ना ही बन। आ जाए बाबर पे फिर। लोन वॉरियर फखर की तो बात कर ली है। अच्छा, बाबर की ना जब पहली शॉट लगी थी ना कवर, मैंने इसे मैसेज भी किया था, मैंने कहा यार ये जब ये वाली शॉट मारते हैं ना तो कोई अलग फील आती है। उसके बाद वो फील आने नहीं दी उसने। It was a scintillating cover drive, man, to kick things off, and the Gaddafi roar was immense. एक तो TV से देख रहे थे हम लोग. We were watching on the telly, and we could hear it like crowd off it. Insane. Crowd तो बहुत जबरदस्त था. Not just during this game, but also previous day जो पूरी टीम आई है, तब भी crowd बड़ा जबरदस्त था. And Gaddafi ने बिल्कुल अभी हम एंड पे जर्सी पे भी बात करेंगे. सब चीजों पे एंड में थोड़ी सी बात करेंगे. चैंपियंस ट्रॉफी राउंड अप हल्का सा करेंगे. But look, when he hit that cover drive, I was like, okay, this could be his day, and we all know he can do a job, you know, as opener. Of course, Abdullah 3 डक बनाकर आउट हुआ था अभी पिछली सीरीज में, तो बाबर एक तरह से ओपन ही कर रहा था ना उस सीरीज में भी, सोचा जाए तो ठीक है. तो मैंने कहा चलो मे बी होपफुली दिस वर्क्स आउट. बट देन केम दैट टिपिकल डिसमिसल वर्सेस स्पिन, जो देख के हम थक गए हैं. ठीक है, इस दफा वो पुल नहीं मार रहा था, इस दफा कोई वो फ्लिक्स ही मार रहा था, caught in that short mid wicket region yet again. And मैं तो 2 बंदे लगा दूं वहां पे, कसम से 2 ही लगा दो आप, वहां पे बॉल कराओ और भाई आ जाएगी विकेट. कुछ लोगों ने ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया था कि मे बी बाबर ओपनिंग कैन वर्क बिकॉज ही माइट नॉट हैव टू प्ले एज मेनी ओवर्स ऑफ स्पिन. I mean, if I'm a captain of the opposition, मैं तो ले आऊं जल्दी स्पिन. मैं तो जल्दी ले आऊं, और अगर मेरे पास ब्रेसवेल पड़ा हो मैं तो ओपन ही करा लूं उससे. बोल सैंडर भी है, सैंडर भी करता. हाँ, मगर ब्रेसवेल के खिलाफ तो जरा ज्यादा हो गया ना. बाबर हैज बीन डिसमिस्ड बाय माइकल ब्रेसवेल 7 times now in international cricket. Bunny alert. Yes. I think we're at that point जहाँ पे बनी वाली आर्गुमेंट कर सकते हैं. अच्छा, वो वरुण ने एक ग्राफिक भेजा हुआ था. हाँ, बड़ा फिट ग्राफिक था. हाँ, जिसपे ट्विटर पे अजीम सिद्दीकी ने मुझे लगता है एक चीज भी पॉइंट आउट की थी. ग्राफिक मैं इधर लगा दूंगा, नोमी टाइम नोट कर लो, ठीक है. यहाँ पे ग्राफिक लगा देंगे, उसके अंदर अजीम सिद्दीकी का कहना ये है कि वो इम्पैक्ट और बाउंस बता रहा है, नॉट द पिच मैप, जहाँ पे वो बॉल पिच हो रही है. लेकिन वरुण हैज क्लैरिफाइड कि वो 4 to 5 मीटर जो है ना एरिया, उसके अंदर सारी बॉल पड़ी है. कल वाली जो थी वो 6 मीटर पड़ी. So I mean, I understand what you're saying, Azim bhai, and I have mad respect for you as well, but we verified this cross-reference with Varun. All of those deliveries were in a 4 to 5 meter or pitched in a 4 to 5 meter wali length, ठीक है. And yesterday was 6 meter, but more or less it's the same. But the weird part about this is कि सारी front foot पे आगे खेली. हाँ, 2 वाली deliveries, 2 dismissals जो हैं, देखो 2 दफा stump हुआ है, 5 दफा catch out हुआ है, सही है. 2 times he was charging down the ground, and all other 5 times he was playing on the front foot. So I'm not saying that this is something, but it's definitely worth looking into. कुछ तो है ना, there's a bit of a trend there. मतलब शायद उस वाली लेंथ पे वो स्ट्रगल करते कि पीछे आने आगे जाने की. बिल्कुल, वो 2 minds में आ जाता है शायद, और जब वो फ्रंट फुट पे आता है तो वो आउट हो जाता है. This is a theory. You guys can investigate it as well. And it caught our eye, and Varun is one of those guys. That's what makes him a great analyst and statistician, is because he looks at these peculiar things, obscure things, and he looks for trends. And that's what he's done over here. And Varun Alvaconda is an honorary Johnny of the podcast. OG Johnny. Alvaconda knees, baby. उसके पास तो Pro Sports की jersey भी है. ठीक है. So anyway, I feel like there's something there, but let's wait and see. But then again, I still feel बाबर आजम को अभी भी ओपन मूव करके ना आपने 3 पोजीशंस हिलाई हैं. ये काफी आई नो के बाबर देखो दो साइड्स ऑफ द कॉइन. एक तो पोजीशन फोर्स चेंज थी. हाँ, इन्होंने उसको सॉल्व करने के लिए 2 positions in the lineup change. बिल्कुल. So Kabi G had to come and bat at number 3, right? First drop. I mean, एक उसने अपिश कट मारा था for 4, and that was it. बाबर की भी यही थी, एक कवर ड्राइव थी, that was it. Kabi G looked completely out of sorts after that upish cut. और बाबर भी यार after that cover drive बस सिंगल भी नहीं लिया जा रहा. कुछ भी नहीं करा. He couldn't even rotate strike. But Kabi G का मैं ये बोलूंगा यार, अभी he had shown you a glimpse of what he could potentially do at 5 or 6. Middle order, lower middle order, he could come and accelerate potentially. Okay, there was no guarantee that he could replicate that knock from South Africa over and over again. But it was worth taking a punt on him in that role. You've changed his role. वो अब 3 पे आ रहा है. उसका रोल चेंज हो गया, बाबर का रोल चेंज हो गया. बाबर को तो चलो अब ये देखो, बाबर जो है ना आउट जो हुआ है ना, वो इट वाज नॉट बिकॉज़ ही वाज ओपनिंग. ठीक है, इट वाजंट दैट केस. देखो ये परफॉर्मेंस उसकी, इट्स नॉट बिकॉज़ ही इज ओपनिंग. आई स्टिल बिलीव कि अगर वो करना चाहे तो वो कर ले, ओपन कर सकता है. टीम कॉम्पोजिशन के लिहाज से ना बहुत चीजें शफल कर ली आपने. You've changed too much because of one change. And Babar Azam has a terrific record at number 3. 60 की average. Yeah. It's one of the best records at number 3, dude. So why fiddle with that? Maybe this works out, but you've taken a risk now.
और बाबर की तो ये जो इनकॉम्पिटेंस वर्सेस स्पिन उभर के सामने आ रही है, ये एक सेपरेट इशू है, ठीक है, एंड ही विल हैव टू वर्क ऑन दैट, बट आई डोंट नो मैन, तीन पोजीशन चेंज, या बहुत ज्यादा पोजीशंस चेंज हो रही है इस एक चीज की वजह से, स्पेशली जब आप एक विनिंग रन पे होते हो और आपका एक कॉम्बिनेशन अच्छा बना होता है ना, यू डू नॉट नीड टू फिक्स इट। एग्जैक्टली, वही तो मैं कह रहा हूँ, दे मेड होलसेल चेंजेस टू बोथ द स्क्वाड एंड द टीम कॉम्पोजिशन, व्हेयरएज यू डिडंट नीड टू डू ऑल ऑफ दिस फायर फाइटिंग। आपकी टीम स्टेबल थी, ओडीआई एक ऐसा फॉर्मेट वाहिद चल रहा था जिसमें आप ठीक जा रहे थे, यू वर डूइंग रियली वेल, यू फिडल टू मच विद दैट, फिडल, ये उसका ट्वीट था बल्कि अमार जहीर का, अमार जहीर द यूनिवर्सल चैंपियन। और जब इतनी चीजें आगे पीछे बदल दी आपने, तो फिर यार पता नहीं, then you have to figure a lot of stuff out in very limited time, and that's not a recipe for success. And I will say this once again, I hope by the end of this Champions Trophy, Saad and I are looking like the biggest idiots in the room. अच्छा, we want to be wrong. अच्छा, एक सवाल पूछना है, ठीक है, आप लोगों से भी पूछना है, तुमसे भी पूछना है, मुझे बताओ, ओपनर्स के बाद आप अपनी बैटिंग लाइनअप देखते हो, यू सी कामरान गुलाम, यू सी रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर एंड खुशदिल शाह, कैसा फील होता है ये नाम सुन के? मैं बस ये जो फीलिंग है ना उसको समझना चाहता हूं। मेरी फीलिंग ये आप कि लोगों की भी, आप भी अपनी बताना कमेंट्स में, मगर मेरी फीलिंग साथ ये कि आई रियली डोंट वांट यू टू रिपीट दैट, आई डोंट वांट टू हियर दैट आउट लाउड अगेन। मैन, इंस्पायर नहीं करती, बिल्कुल इंस्पायर नहीं करती, सीम्स एक्सट्रीमली फ्लेकी एंड डॉजी, देयर आर सो मेनी प्लेयर्स ऑफ अ सिमिलर मोल्ड इन देयर, ये मसला है, सारे एक ही तरह के प्लेयर आपने डाल दिए हैं, पता नहीं किस किस्म की एक्सेलरेशन होगी आगे जाके। एक कामरान गुलाम ने आपको झलक दिखाई थी, वो आपने नंबर 3 पे फेंक दी है, एंड कामरान गुलाम लाइक कैंट फॉल्ट द मैन फॉर ट्राइंग, प्रेशर बड़ा, रिलीज शॉट के लिए गया, नहीं, आई कैन फॉल्ट हिम फॉर दैट, क्योंकि ये हमने टेस्ट क्रिकेट में भी देखा है, इसी तरह की शॉट खेलते हुए आउट होता है। सही कह रहे हैं, जब उसने प्रेशर रिलीज करना होता है ना, वो इस तरह की शॉट ही खेलता है। और कामी जी, I think this is just not a good release shot. Maybe you should try something different. And I think Kami ji work on, I know you can do it. आपने पहले भी करके दिखाया, जरा rotation of strike, you're a good runner of in between the wickets as well. और थोड़े gap shaps ढूंढो, हर वक्त glory shot के लिए ना जाओ। और दूसरी बात ये है यार कि he looked Which he's really done before, man. He looked really out of sorts to the point where मुझे लग रहा था कि इससे ऐसा हो ही नहीं यार one down थोड़ी मुश्किल, हालांकि यार डोमेस्टिक में वन डाउन चल जाता है, मगर दिस इज इंटरनेशनल में फर्क है भाई। और यार आपने उसका फौरन ही रोल चेंज कर दिया, अभी तो उसने जगह बनाई थी और उसको बिल्कुल नए रोल पे ले आया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैटिंग पोजीशन इन ओडीआई क्रिकेट यू हैव गिवन टू अ गाय हु इज न्यू, आई डोंट गेट इट, राइट? और जब आपके पास है एक बंदा जो नंबर 3 पे 60 एवरेज कर रहा है, आई डोंट नो मैन। एक और बात ये यार, कामी जी का तो यूएसपी था टू बी ग्रेट वर्सेस स्पिन, या आपने वो भी नेगेट कर दी। ही लुक्ड कंप्लीटली एट सी वर्सेस स्पिन एज वेल। बाबर का भी स्पिन के खिलाफ मसला है, पूरी टीम का ही स्पिन के खिलाफ मसला है यार। 6 ऑफ पाकिस्तान's first 7 dismissals came versus स्पिन। स्पिनर्स को भी तो देखो ना, कितनी 7 विकेट लिए टोटल। नहीं 6 ली ना, फिर 9 में से या 9 में से 6 मैट हेनरी took 3 for 55। ब्रेसवेल और सैंटनर ने क्या 85 रन्स दिए 5 विकेटों? नहीं, so Santner had 3 for 41 in his 10 overs, 82, and Bracewell had 2 for 41. So combined those guys delivered 5 for 82 in 20 overs, and these are 2 frontline spinners for New Zealand who can bat as well. खत्म, गेम खत्म। उनके लिए तो बैलेंस बहुत अच्छा हो गया। 20 ओवर आपने करवाए हैं, 5 विकेट लिए, 82 रन्स दिए, आगे क्या करेंगे आपने? You've basically dealt a fatal blow to Pakistan, those two guys, and Pakistan's troubles versus spin are getting more pronounced by the day. हालांकि दिन जो प्लेयर्स हैं, they're very good players of spin. चलो रिजवान जल्दी आउट हो गया, वैसे तो अच्छा प्लेयर है, बट चलो खैर है, कभी कभार आप जल्दी आउट हो जाते हैं। सलमान अली आगा, even तैयब ताहिर, they're good players of spin, man. तैयब का भी इतनी श्योरिटी नहीं, he is a good player of spin. I think he's better against spin than pace. हाई पेस के खिलाफ थोड़ा वो हाई पेस के खिलाफ सारी स्ट्रगल करते हैं, सारी स्ट्रगल करते हैं पाकिस्तान में सारे। लुक रिजवान को मैं आई नो रिजवान गॉट आउट फॉर लाइक 3 or something, बट चलो उसको पड़ गई एक बॉल। उसका मसला आउट होना नहीं है, उसका मसला है वो जो रिव्यू लिए उसका भी रिव्यू गंदा था, और फखर का भी गंदा था। दोस टू डिसमिसल्स वर स्टोन डेड। आपको नेकेड आई से नजर आ रहा था कि ये प्लम एलबीडब्ल्यू है, और आपने रिव्यू ले लिए, और रिजवान ने पहले भी रिव्यू गंदे लिए। खैर एक तो शीनो ने करवा दिया, शीनो ने कहा आउट है, तो रिजवान ने ले लिया एंड में, बिल्कुल 3 सेकंड रहते थे कि लेना नहीं चाह रहा था, और दूसरा फिर वो लगी है कह दिया हारिस रऊफ ने, तो चलो इतना बड़ा गैप। या वो आई गेस फास्ट बॉलर्स की भी थोड़ी उसमें गलती है, मगर रिजवान को ना थोड़ा इस रिव्यूज में गेम अप करनी पड़ेगी। और जो बैटिंग में इनने रिव्यूज आए कि वो बहुत गंदे अनफॉरगिवेबल, रियली अनफॉरगिवेबल। सो या आई विल एक्सक्यूज द लो स्कोर, बट द रिव्यूज नीड टू बी लुक्ड एट।
एंड या उसके बाद यार क्या सलमान अली वाज ऑलराइट, He was decent, yeah. ठीक था, मतलब एक उसने वो कवर्स के थ्रू स्लैप किया था स्पिनर को फॉर 4, ही यूज्ड हिज फीट वर्सेस पेस, लेकिन मसला पता है क्या? दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग दो, निकल के पेस को मार रहा था, एक इसने चौका मारा, फिर इसने एक अजीबो गरीब किस्म का छक्का मारा ऑफ हिज नीज मैन, ऑफ हिज नी रोल बेसिकली हेनरी के खिलाफ, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग 6, बट लुक ही वाज आल्सो ड्रॉप्ड ऑन 22. देखो सलमान अली आगा बहुत इज अ गुड डिसेंट प्लेयर, लेकिन मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आता, शायद आप लोगों को आता हो कि जिस तरह पाकिस्तान को 160 रन चाहिए फ्रॉम 90 बॉल्स, तो वहां से वो जितवा देगा मैच. सलमान अली आगा का मैं ये बोलता हूं कि आई एम ऑलवेज कॉन्फिडेंट दैट ही विल कंट्रीब्यूट, ही विल पिच इन, बट विल ही, सलमान अली आगा तो खेलेगा. हाँ, मैं तो ये नहीं कह रहा कि उसे निकालो, वो तो वाइस कैप्टन है आपका, वो उससे निकाल भी है नहीं ना, सकता. वो ओडीआई टीम का शायद वाइस कैप्टन ही है. हाँ हाँ या, जी या, जी या. T20 का कैप्टन था ना, तो वो तो खेलेगा ही, आई नहीं थिंक. सैल आगा तो ब्रो, एंड आई वुड इन्वेस्ट इन हिम एज वेल. उसको 5 पे खिलाओ, ठीक खिला रहे हो आप, 40 रन किए, नॉट बैड, ठीक है, वाज ड्रॉप्ड ऑन 22, बट ओवरऑल he was trying as well, and I liked his proactive approach versus pace. Spin का मैं पता है कि सैल आगा खेल जाता है सही, but pace के खिलाफ he used his feet on one occasion, and then there was that crazy 6 versus Henry, so he gets a passing grade for that 40, not bad, but to Saad's point, I don't see him as a player who can take the game away from the opposition. I can see him as a player who will contribute, who will play his role, he'll do his part, but क्या वो मैच छीन के लेकर जा सकता है ऑपोजिशन से, वो मुझे नहीं पता. सिर्फ सलमान अली आगा का मसला नहीं है, जो मैंने पहले आपको अपना मिडिल ऑर्डर ना बोलना फिर से, 2 लोअर मिडिल ऑर्डर मैंने नहीं सुनना वो ऑर्डर फिर से. कामरान गुलाम, रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर एंड खुश दिल शाह. मैं जा रहा हूँ, कोई है, आई एम लीविंग. अच्छा बैठो ना, कोई है ऐसा इसमें जो ये रोल कर सकता है? पता नहीं इसमें से क्या ये रोल क्या साइन हुए होंगे, मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही. तैयब का ये है कि तैयब वो एक्सेलरेट करने की कोशिश करता है. Look, he scored 30 of 29. Bracewell took a one-handed screamer. Oh, beautiful to get rid of him. That was funny how Bracewell took that one and dropped the Salman Ali Agha one. ज़्यादा आसान वाला सलमान वाला था, but जो उसने वो तैयब का कैच ले लिया, उसमें तैयब को मैं क्या ही फॉल्ट करूं. But look, I liked a few things. एक inside out over the covers गए versus spin. तैयब he played a reverse paddle versus spin. बड़ी खूबसूरत वो शॉट थी, and I was like that's good. I like the fact that he can do that. And then there was that whippy cut versus pace. वो तो उसका बैट ही whippy वो तो उसका ट्रेडमार्क है, जो आए वो बस विपनेस आती है उसमें. फेंटा मारता है वो, Scottish अंडे फेंटते हैं ना. मैं तो कई दफा कह चुका हूं कि all I want in this life is to have a तैयब ताहिर ऑमलेट. मुझे एक दफा वो अपना ऑमलेट खिला दे. He's a whippy dude. तो I would give him a passing grade as well. उसको मैं कोई fault नहीं. क्या सलमान तैयब fine, ठीक है. रिजवान had a bad game with the bat, bad reviews. कामरान गुलाम completely at sea. बेचारा. Number 3 पे बिल्कुल मजा नहीं आया. मैं बता रहा हूँ उसकी गलती भी नहीं है. And I hope that he can prove us wrong in the next game or whatever. But उसको मेरे हिसाब से you should have backed him in the lower middle order. You should have told him कि तुम accelerator हो. और तब वो उसका की शॉट मारते हुए आउट हो ना, तो तुम्हें इतना गुस्सा भी मत चढ़े सादी. सही बात है, वो उसका फिर रोल है. यही तो मसला है ना. यही तो मसला नहीं, यही तो मसलूसेस हैं. ये मसलूसियां हो गई हैं. टू मच शफलिंग ब्रो. बहुत आपने ना खिचड़ी बना दी है एक अच्छी खासी टीम की. और खिचड़ी मुझे पसंद नहीं है. अच्छा, मुझे वैसे खिचड़ी पसंद काफी है, मगर मुझे क्रिकेट में खिचड़ी नहीं पसंद. मुझे अपनी खिचड़ी पसंद है वो हल्की सी येलो वाली दाल के साथ और रायते के साथ. ओहो हो, भूख लग गई है यार. भूख लगन रही है शादी, भूख लगन रही है. वैसे भूख तो लग रही है. अच्छा, leave me alone, just leave me alone. आगे मुझे नहीं आता, वैसे ही आ गया दिमाग में. इसके बाद एक और शूट करने में बिराम जल्दी कर. अच्छा चलो यार, बाकी सब बैटर्स की तो बात कर ली है. I'm not going to waste time on Abrar and Shaheen. अब्रार का मैं बस यही बोलूंगा कि his cameo softened the net run rate blow. ये और बुरा होना था. This defeat was going to be worse if not for Abrar's 4s and 6s. Happy Heart पे आ जाओ. Happy Heart यार, मुझे तो बड़ी दुनिया ने बताया था कि Happy Heart has improved his game versus spin. यार मुझे तो पेस के खिलाफ भी नहीं लग रही थी. पेस के खिलाफ एक जो चौका लगा उसका कतरी थी, वो भी कतरी बहुत लेट था. उस कतरी पे बहुत ही ज्यादा लेट था. एक उसको हाथ पे भी लगी थी. नहीं वो तैयब को लगी थी. सॉरी खैर तैयब को लगी. एक ही चौका था, वो भी गंदा था चौका था. लक वाला, लकी 4. यार होपफुली पहला मैच था इसलिए थोड़ा प्रेशर लिया हो. अगले मैच में बेहतर हो जाए, लेकिन वो वाली फील्स नहीं आई. आई हैव बीन टोल्ड by people who know खुशदिल personally is that he is the sort of dude who can take pressure. ये बकल कर जाता था. और मैं ये भी बोलूंगा कि इसको ओडीआई टीम से गलत निकाला था. उस टाइम पे परफॉर्म कर रहा था. He takes a lot of pressure. Yes. अच्छा. Doesn't soak a lot of pressure. Okay. स्कोल्टा पड़ जाता है प्रेशर. ठीक है. Hopefully you know, look, he'll know कि this might be his last opportunity. ठीक है. If he needs to cut it at an international level, यही एक चांस इसको मिले. This is a very important series for him because the role that has been assigned to him, number 7 वाला, इसमें he'll have to bowl,
and he'll have to bat efficiently at the death. Proper all-rounder उसे छक्के देने हैं यार. छक्के. आपने तो एक बाउंड्री भी नहीं दी, जो दी वो तो लकी बाउंड्री. चलो मैं फिर भी इतना नहीं, पहले मैच है इसलिए इतना क्रिटिसाइज नहीं यार करूंगा. मैं तो ये बोलूंगा लेकिन कि he might have to face spin. He will. ठीक है, I think he's not a good rotator of strike, and he has this issue versus spin as well. और ये जिस तरह stump हुआ, the fashion or manner in which he got stumped versus Santner gave me the sort of feeling that this just is not his forte. And I hope I'm wrong. I hope that Khushtil अगला मैच जिता दे पाकिस्तान को. ठीक है, I want him to succeed because again this is a very important series for him, and this is a very important role. He is like plugging that gap जो साइम के ओवर गए हैं उसकी वजह से टीम में, वरना न्याजी पे ही आपने बैंक करना था प्रॉब्ली, और न्याजी पे मैं तो करता थोड़ा बैंक. लेकिन फिर पांचवा बॉलर कहां से लाते हैं, बहुत मसला हो गया, बहुत ज्यादा मसले हो गए हैं ना. बट खैर फिर भी आई वुड हैव पिक्ड लाइक सुफियान मुकीम एंड अब्बास अफरीदी इन दिस टीम. और मैं अब्बास नॉट इन वन डेज, आई वुड हैव टेकन अ पंट ऑन अब्बास अफरीदी. बट एनीवे लेट्स सी खुशदिल का क्या बनता है अब. यार मसला बताइए, हमारे जो बैटिंग परफॉर्मेंस थी ना उसमें मुझे थोड़ी सी तप ज्यादा इसलिए चढ़ी है क्योंकि कंडीशंस वर इजी. आपने तो कुछ किया ही नहीं है. That is a big one. You couldn't make most of them. यार मतलब you got the best of the batting conditions. पहली innings में ball was keeping low. There was awkward bounce when Rauf was bowling. सैलागा की एक दो स्क्वायर टर्न हो गई थी. बहुत स्क्वायर टर्न हुई है सैलागा की. फिर तो कंडीशंस ईज हुई है यार. मैं ये नहीं कह रहा कि आप 330 चेस करते, बट यू शुड हैव पुट अप अ फाइट सो दैट एटलीस्ट द नेट रन रेट इज नॉट दैट टेरिबल. नहीं, मुझे कुछ साइंस नजर आते हैं कि हाँ यार ये कुछ भी ये बॉय फिट खेल रहा है, तो देख सकते हैं ये जिस तरह की टीम कॉम्पोजिशन थी. डोंट रिपीट दैट बैटिंग ऑर्डर अगेन. फखर के अलावा कुछ इम्प्रेसिव नहीं था. फखर और बस्ट ही लग रहा था. फिर उसके बाद फिर हमारा जो कामी जी, रिजवान, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा और खुशदिल शाह का मिडिल ऑर्डर है. फिर बोल दिया इसने, ये चाहता है कि मैं छोड़ के चला जाऊं पॉडकास्ट. इट्स जस्ट पेनफुल टू हियर, एंड आई नो कि दिस इज जस्ट वन गेम. आई डोंट वांट टू ड्रॉ एनी मेजर कंक्लूजंस, मगर मेरी जो फीलिंग्स है ना वो यही है कि दिस विल नॉट वर्क. और खुशदिल का बस आई रियली होप दैट ही कैन कम ऑन टॉप. और मुंह पे हमारे चांटे मारे हम खुशदिल की तारीफें कर कर मुक ना रहे हो. वी आर ईटिंग हम्बल पाई ऑन हम्बल पाई ऑन हम्बल पाई. बट आई डोंट नो मैन, मुझे अभी भी लगता है कि ये और फहीम अशरफ बीपीएल की परफॉर्मेंसेस भी प्राइमरीली पिक हुए हैं, और मैं इस चीज के खिलाफ हूं. वो तो कोई ढकी छुपी बात है ही नहीं. मैं इस नोशन के खिलाफ हूं कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी जैसे टूर्नामेंट के लिए जिसमें आप टाइटल डिफेंड कर रहे हो, आपने बीपीएल की परफॉर्मेंसेस से प्लेयर पिक कर दी. एक तो फॉर्मेट का फर्क है और ऊपर से बीपीएल की क्वालिटी इतनी खास नहीं. स्टूपिड सिलेक्शन. अच्छा मुझे बताओ, any quick fixes to fix this lineup? You should go into the other dressing room, sir. अच्छा तुम जाओ ना, मैं फिर वरना रिपीट कर दूंगा बैटिंग ऑर्डर. मुझे बताओ, I would make fixes to the squad. नहीं to this lineup. अगले मैच के लिए अगर आप पता है क्या करो, it might sound a bit left field to you. साउथ से ओपन करा दो. मैं नहीं लेफ्ट फील्ड नहीं, दिस इज क्वाइट अ पॉपुलर नोशन. साउथ से ओपन करा दो फखर के साथ. हां मैं भी. What that will allow you to do is that then you can play Babar at 3. You have Rizwan at 4. You can have one of Kami G or Tayyib Tahir, or two of Kami G, Tayyib Tahir and Salman Ali Agha at 5 and 6. सलमान तो खेलेगा ना, तो बस कामी जी नहीं तो फिर मेरी तरफ से खुशदिल फिर खेलेगा. हाँ खेलेगा ना, उसके ओवर चाहिए अब तुम्हें. खुशदिल तो मैं भी हूँ, मुमकिन तो ये भी है. बैड सीन्स ब्रो, बैड सीन्स, मसलूसियां. या साउथ को डालो. साउथ आपका वो बॉलिंग ऑप्शन हो गया विद सैल आगा. मैं बस फिर कामी जी और तैयब में रोटेट करके देखो क्या चलता है. और क्या कर सकते हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है. आपने स्क्वाड जो सेलेक्ट किया उसमें तो बिल्कुल ही कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी. शादाब खान को फिक्स अ फ्यू थिंग्स, क्योंकि पता है शादाब की अगर बॉलिंग नहीं चल रही तो सलमान से ज्यादा ओवर करा लो, और अगर चल रही तो सलमान से ओवर कराने की जरूरत नहीं है. और बैटिंग तो उसकी ठीक ही जा रही थी यार. वो इवन इन द स्लंप इट्स नॉट लाइक ही वाज फेलिंग विद द बैट. और शादाब हिटे मार लेता है, और शादाब की गेम अवेयरनेस बड़ी अच्छी है. वो समझ जाता है सिचुएशन को, और वो फिर उस हिसाब से खेल भी लेता है. और फिर फील्डर आपको शानदार मिल रहा है. मे बी देयर इज स्टिल टाइम टू ब्रिंग हिम इन. आई डोंट नो. देयर इज टाइम. या वो उसने शाहीन को लोअर तो कर दिया था वो मिशन इम्पॉसिबल वाले ऐड में, बस वहीं तक उसका रोल था. फिर आई गेस I don't know. I think he could fix a few problems over here as far as the balance and composition is concerned, but मुझे भी नहीं लगता है. नहीं, I think अब यही टीम जा रही है. हाँ. They're quite hell bent, and ये 5-man selection panel है. Maybe वो एक चेंज कर लें, शायद सुफियान को ले आए वो. हाँ. उससे ज्यादा यार ये यूएई में आपने एक मैच खेलना ना, उसमें थोड़ा कवर तो चाहिए. आपको 5 प्रॉपर बॉलर चाहिए होते हैं इंडिया के अगेंस्ट. यू कैन नॉट गो विद 4 फ्रंट लाइन एंड 1 पार्ट टाइम. इंडिया को मिल गया ना खुशदिल या राणा फहूम,
इंडिया खा जाएगी आपको, पेलेंगे पेल देंगे, वो चीथड़े उड़ा देंगे आप, चीथड़र्स। ठीक है, तो खैर पता नहीं, अब आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे तो डर ही लग रहा है। एंड माय हॉट टेक इज दैट द चैंपियंस ट्रॉफी विल बी द लास्ट असाइनमेंट ऑफ दिस 5-man सिलेक्शन पैनल। कुछ चेंजेस होंगे, कुछ लोग फारिग होंगे, दे विल लुक फॉर स्केपगोट्स। यार ain't no goat like a scapegoat। बखैर यहाँ पे वैसे पॉइंट तुमने ठीक बोला, इनको रिस्पॉन्सिबल रखना भी चाहिए, क्योंकि प्लेइंग 11 और स्क्वाड दोनों सेलेक्ट कर रहे हैं कप्तान के पास। तो मैं रिजवान को क्या क्रिटिसाइज करूं? मैं इस बैटिंग ऑर्डर पे रिजवान को क्या क्रिटिसाइज करूं? सिर्फ रिजवान को इस पूरे मैच में एक क्रिटिसिज्म करूंगा, दैट्स बैड रिव्यू। यस, क्योंकि बैटिंग में यार ही इज बीन वेरी डिसेंट, ही इज बीन गुड, अच्छा जा रहा है रिजवान, ऐसी कोई बात नहीं है। एक फेलियर ही था ना, ये तो होता रहता है। आई वुडंट लाइक level too much blame on him। बाकी तो और कैप्टनसी में भी I like the fact that he brought a brar on it। वो सेकंड स्लिप वाली चीज माइनर है। अच्छा, या क्या करें सादी, फिर कुछ भी नहीं, मुझे लगता है अब हम चैंपियंस ट्रॉफी की जरा बातें कर लेते हैं। कुछ कुछ होता है। मैं ये बोलूंगा कि स्पिन वाला मसला आपको तंग करेगा। आपने 9 विकेटों में से 6 विकेट्स आपकी स्पिन पे गिरी हैं। योर फर्स्ट out of your first 7 wickets, 6 fell to spin. You were undone by spin. Santner और ब्रेसवेल आपको अकेला ही खा गए, 5 for 82 and 20 overs combined। और सैंटनर और ब्रेसवेल, यार वैसे इतनी बड़ी लग्जरी है न्यूजीलैंड के पास। They've got Glenn Phillips, Santner and Bracewell, 2 frontline spinners है, एक part timer है, all 3 of them can bat and all 3 of them can strike big। They have a really good balance in that regard। And then Matt Henry, ठीक है, he also took 3 for 55। We always say he's very underrated। He'll be very important। In fact, लॉकी इंजर हो गया बेचारा, वरना सीएस की जगह लॉकी होता, फिर तो भाई बहुत ही खतरनाक पेस अटैक है ये। लॉकी फर्गसन, मैट हेनरी, विलियम ओरोक। And William O'Rourke might have gone for a few, but he is a very talented bowler। He generates crazy bounce, he's very quick। He's very very rapid, right? न्यूजीलैंड की टीम तो अच्छी लग रही है मुझे काफी। Hopefully Rachin Ravindra recovers। Hopefully। Yeah, and I think that what do they do? यही लेथम ही खेलेगा फिर मिडिल ऑर्डर में। I don't think कॉनवे आएगा अगले मैच में ओपन करने, अगले मैच और फिर चैपमैन को खिला सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। Once Ravindra is back, what do yeah, they then do? they probably Will have Young to probably goes out then. Conway comes back in. Yes, so Mark that's Chapman. what they could do। And in fact, that might be the best possible solution for them, because Latham की form नहीं लगी हुई। ठीक है, Bring Chapman in the middle and even though I will say this, Latham is a very good player of spin। He's a very good player of spin, लेकिन I still believe कि वो जिस पोजीशन पे खेल रहा है ना, वहां पे वो उसकी वो वाली गेम एक्सेलरेट करने वाली वो है, वो थोड़ा टॉप ऑर्डर बैटर। टेस्ट में टॉप ओपन करता है ना, टेस्ट में तो वहीं चलता है वो। सो या टॉम लेथम माइट गो आउट, चैपमैन माइट कम इन, कॉनवे कम्स इन। अच्छी टीम लग रही है न्यूजीलैंड की। आई सेड दैट दे वुड बी फेवरेट्स फॉर दिस ट्राई सीरीज एंड आई एम हैप्पी विद दैट प्रेडिक्शन, आई वुड से। अच्छा, मैच की तो बात हो गई, मैच होगी, बस थोड़ी सी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करनी है, जहां पे पाकिस्तान की जर्सी रिलीज हो गई। अच्छा, एक दफा चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी पे आने से पहले मैं ये जरूर बोलूंगा कि यार वेरी गुड जॉब मोहसिन नकवी। On the Gaddafi Stadium। I know we're very critical of Knackers and he gives us many reasons to be critical of him, but it was it has overly critical हो जाते हैं कि यहाँ पे फिर हमारे accreditation भी कैंसिल हो जाती है। बट चलो यार, बहुत अच्छा आपने स्टेडियम बनाया। इट लुक्ड रियली रियली नाइस। I mean in record time, so props for that, man। Look, the viewing experience was really good। Zaid Babar Khan was there। He sent me a picture। वो कोई व्यू obstruct नहीं हो रहा था, क्योंकि आपने जालियां हटाकर you've made these trenches and then that's how you're stopping players from or fans from going to the ground। ठीक है, that's good। I think that's a brilliant idea। कराची में भी कर लेते हैं। कराची में अभी भी जंगले लगे, कराची में जंगले हटाओ और ये वाली चीज लाओ। ठीक है, अभी भी टाइम होपफुली होगा इसका, क्योंकि ये तो बाहर करना है ना। नहीं होगा, नहीं है टाइम। नहीं ब्रो, 10 दिन खोदो चीज और बना लो। तो नहीं होता यार, पागल। मेरे ख्याल से they should try। यार आर यू क्रेजी? वैसे भी स्टेडियम्स हैंडओवर हो चुके हैं। It looked really pretty। ठीक है, गद्दाफी looked really really nice and yeah, record time में आपने किया ये। I know that your reputation was on the line and you had to deliver, but good job on you for delivering। ठीक है, so जहां पे क्रेडिट देना है वहां पे देंगे, सही है। और क्राउड बहुत शानदार था। Even the day before जर्सी रिवील पे क्राउड वाज अमेजिंग। आइमा बेग के कॉन्सर्ट को एंजॉय किया होगा उस क्राउड ने। अली जफर भी था। आज क्रिकेट का दिल में मैच लगाओ न न न न न न क्राउड के साथ खेलनी जश्न है, अपना क्राउड अपना टशन है। अच्छा चलो बस हो गई जी। हाँ, so Gazaffers looks pretty, crowd was good। Jersey, I liked it। I really like it। I fucking loved it। Are they listening to our podcast at the PCB? क्योंकि हमारा एक फैन है अपना जाना ऑफिशियली जानी नहीं है वैसे वो, but Asjad has been an avid follower and avid follower एक पॉइंट बता अजद।
हाँ था एक जानी, टाइम हाँ, पे. So yeah, Asjad mentioned के I think they listened to your podcast. Because Saad and I have been raving or pleading for a lime green, neon green jersey. beautiful. We finally got it and I love the pattern as well. Beautiful. I loved it. बहुत खूबसूरत जर्सी है, बल्कि करते हैं ऑर्डर. मेरे ख्याल से हाँ, खरीदनी पड़ेगी करनी ये वाली. पड़ेगी। या अगर आपने जानी बनना है तो हम इस पे भी बना हाँ, देंगे पता 6 है, months के लिए। अगर आप साथ और मुझे एक्सेल और एक्सेल में I don't know एक्सेल में Double पहले XL. साइज चार्ट देखूंगा। डबल एक्सेल और एक्सेल में जर्सी भेजते हो ना, तो आपको 6 या 7 मंथ्स के लिए जानी बना देंगे पर जर्सी. ठीक है, क्योंकि ये वाली बहुत खूबसूरत है. या आई थिंक they've done a fantastic job. Good job. It looks really nice. One thing I will say though, why pair it with dark trousers? I don't know. I think it'll look good. I don't like the dark trousers. I think bro. it'll look good. I think that they almost nailed it. पता है सही है। They were so close to completely I don't nailing mind it. I like it. मुझे तो थोड़ा वो कॉम्बिनेशन बनाया ना। The trousers I like are really bothering me. I know जब हम खरीदेंगे तो हमने तो trousers नहीं पहनने, मगर जब players उतरेंगे उन trousers के साथ, उस वाले green के साथ, it'll bother me. It won't. पता है बीच It में won't. साथ मैं ही बता रहा there was a third shade of green. The हाँ, petal. Why couldn't they make the trousers the color of the petal? वो won't look good. पता नहीं यार, मुझे तो trousers बड़े गंदे लगे. नहीं फिट But लगेंगे जब jersey on खेलेंगे its ना। own, I'd give it a 9 on 10. हाँ नहीं जब खेलेंगे तो देख लेना, ये भी फैन जिसने भी किया डिजाइन, good job. वो हैं ग्राफिक Deniers. Graphic designers हैं। deniers. हादी आई गेस। अच्छा। If I'm not wrong, कुछ लगाया हुआ था पोस्ट। एक तो नाम नहीं याद रहते यार। चलो, मुझे। good job Hadi. Good job Hadi and Yeah. all of the We'll guys। definitely be getting our hands on that jersey, and you should too by going to the PCB store. Go उसके do that. अलावा गाना है। आतिफ का. गाना है। It was good. It was okay. I mean, I'd give it a 7 on 10. I think Atif was capable of better. हाँ, there's something missing, लेकिन ये भी मैं बता दूं, ये जो एंथम्स होते हैं ना, इनको ब्रो जब वो स्टेडियम में बजेंगे, वो पोस्ट प्रोडक्शन में आएंगे, तब जज देखो पंपी तो है. What I will say is कि the build up is not good. I don't like the build up in the song, but I think the chorus will work. The chorus and the music जो है ना वो that'll work. Yeah. I don't mind it. मतलब बहुत ज्यादा लोग काफी ज्यादा क्रिटिकल हुए में कि मैं चुप हूं क्योंकि आतिफ असलम ने गाया हुआ, क्योंकि एवरीबॉडी लव्स आतिफ. देखो, we're not throwing shade at It wasn't his best work. It wasn't his best work. He has sung better songs. I think आगे देख is also a better आगे song. तक बहुत अच्छा गाना है, वैसे underrated. But चलो यार, I'm sure कि जब वो वीडियो पैकेजेस के साथ चलेगा ना कोरस, Bro मैं बता रहा हूँ, वो feels चल आ जाएगा. जाएंगे, feels आ जाएंगे। और I'm also quite sure that this song will grow on me. हाँ, मुझे हो जाएगा. हमेशा ये होता है यार, हमेशा नहीं होता. दिल जशन बोले भी हो जाते कभी मुझे वो कभी भी नहीं कभी कभार उस तरह का भी सीन हो जाता है लाइफ में, जो एंड तक दिल ने जशन नहीं बोला, बथेरी बातें बोल गया दिल. ग्रूव मेरा इज द परफेक्ट एग्जांपल फॉर दैट यार मेरा जो फेवरेट है ना, वो तैयार हो है. मुझे नहीं वो जो द वीडियो पैकेज वाला वो जो पार्ट था, बस तैयार हो. और फिर वो शुरू में जो तुम वीडियो पैकेज की बात कर रहे थे ना, वो जो इंस्ट्रूमेंट बजता है, वो बहुत फिट था. इट्स स्टिल माय फेवरेट एंथम ऑफ ऑल टाइम. एंथम आई लाइक द सॉन्ग. दैट वाज योर फेवरेट आरिफ लोहार जब आता है, दैट वाज योर जब फेवरेट. धड़के दिल ये साथ साथ, मुझे नहीं मजा आया था, तब जीत हो या मात मार. मुझे ज्यादा मजा नहीं आया था. अच्छा भाई, तो सही है भाई, साथ को मजा नहीं आया था. आगे देख बहुत अच्छा था, अंडररेटेड. सबसे फजूल पीएसएल लगाना मुझे वो फवाद खान वाला लगता है. हाँ, मुझे याद भी नहीं. I actually don't remember the song. That's how bad I found it. क्या था गाना? वो नहीं याद. क्या था वो गाना? वो आपको शायद याद हो. नहीं, अगर वो एंथम ना होता ना, वो गाना अच्छा था. अच्छा, वो एंथम नहीं था. एंथम टाइप तो है ये वाला आतिफ का. Yeah. It might not be the best anthem we've heard, क्योंकि we've heard some bangers. लगा दो जोर कि दुनिया हिलजुल जाए, टू 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 टू, ये था वो. कौन सा? फवाद खान वाला. हाँ, ने तू और मजा चखा दे तू. फजूल गाना था. खेल दीवानों का. ये खेल दीवानों का नहीं, मेरी भी लिस्ट में काफी नीचे. I don't like it. Yeah. But खैर, even ICC actually events पता है लास्ट ईयर वाला was the worst one. ICC events में बहुत बेहतर anthems रहे हैं. 2019, 2015, और फिर वो वाला यार, दे घुमा के वो बड़ा फिट था. बहुत फिट. जियो खिलाड़ी, वाहे वाहे. और भी हैं इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहे, मगर ये 3 तो मुझे इंस्टेंटली याद आ गए यार. ऑनेस्टली उस टाइम पे मुझे तो अच्छा नहीं लगता था, मगर इन हाइंडसाइट लिव द गेम लव द गेम भी तो बुरा नहीं था. वो तो बीट थी ना अच्छी. द बीट वाज रियली नाइस. और फिर फखर जमान नहीं, फखर आलम,
ये कर रहा होता था ना जब वाइब्स थी उस टूर्नामेंट की। the golden age of pavilion. Pavilion, bro, क्या था वो? They did. वो नच पजापट पे डांस कर रहा था अपना शोएब मलिक, और फिर वसीम भाई कहते हैं ए शेबी. Pavilion was a good show. Was a good show. Yeah, that was fun. But khair, anyway, like the jersey more than the song. I would say that. Definitely. अच्छा, और इंडिया पाकिस्तान की राइवलरी डॉक्यूमेंट्री जो नेटफ्लिक्स पे आई अभी साथ ने देखी नहीं. मैंने नहीं देखी. Time जब ही वो नहीं देख लेगा तो हम आराम से डिस्कस करेंगे उसको. But for now that's all. Let's see. Pakistan will be hoping कि New Zealand defeats South Africa. So that it's a semi-final versus Pakistan. New Zealand versus South Africa का भी करेंगे हम एक podcast. हम New Zealand South Africa भी कर लेंगे podcast. और if New Zealand beat South Africa, then it is just a straight shootout. Semi-final है South Africa versus Pakistan. If New Zealand lose to South Africa, net run rate will come into play and Pakistan के chances फिर बहुत बुरे लग रहे हैं. आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल. बैराम मुझे हर जगह फॉलो करते हैं. हमारी बूतियां पसंद आई हो, जो कि मैं लास्ट टाइम कहना भूल गया था, पता तुम्हें? तो हमें स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं आप लोग. उसके अलावा एक दो और ड्राफ्ट शाफ्ट भी आ रहे हैं. तो बस अब क्रिकेट सीजन शुरू हो रहा है. प्रो स्पोर्ट्स के साथ आप लोगों ने रहना है और enjoy करना है. We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz. Easy हो जाओ boys, enjoy.